Today here I will teach you our fourth part of narration. As we know that we have learned our basic uses of narration and how to construct sentence direct to indirect form, and we have also taken various examples to construct this type of sentence. Here I will teach you some different kind of sentence which are taken in direct speech to indirect speech. Now first here we are taking affirmative sentence. Someone asks you affirmative sentence. What is affirmative sentence? Affirmative sentence means simple sentence. Simple sentence. It means simple sentence. We call it affirmative sentence. Affirmative, 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 oblique, declarative. Declarative, all are same. All are same. Affirmative, affirmative, declarative, all are same. In simple language, we call it simple sentence. How to conduct narration? If affirmative sentence is taken, example. One more thing. Say oblique tell. Say and oblique tell. These are two words which is used in affirmative sentence in case of reported verb. Now this word can be removed by using add with, add with, add, reply, request, assure, protect, mention, address, so on. So on. So on. So on. Now, if you construct indirect speech and you would like to remove say and tell, and even you can also put say and tell, that is your choice. You will have to put instead of say and tell add with, add, reply, request, assure, protect, mention, address, so on. That means आप यदि से और टेल को रिप्लेस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब से, तो आपको इन वर्ड्स का यूज इसके प्लेस पे करना पड़ेगा. नाउ हियर आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल एंड वन मोर थिंग, डेट is used to link that sentence. That it is playing, role of conjunction, to link sentence. That it is playing role of conjunction to link sentence. That it is playing role of conjunction to link sentence. Here I am taking example. He said, if they try, they can reach on time. He said if they try, they can reach on time. He said if they try, they can reach on time. Now ये आपका डायरेक्ट स्पीच का है.
direct speech. Direct speech. Firstly, again I am telling it. ये आपका RV है. RV means reported verb and that is your RS, reported speech. Now you have to construct its indirect speech. He said that if they tried, they could reach on time. He said that if they tried, they could reach on time. He said that if they tried, they could reach on time. Here you are looking. मैंने क्या चेंज किया? यहाँ पे मैंने आरवी यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब सेम था. ये रिपोर्टेड स्पीच जो था इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसका टेंस ओनली चेंज किया. इसकी हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ. उसने कहा यदि वे ट्राई करते हैं तो टाइम पे पहुंच सकते हैं. यदि वे ट्राई करते हैं तो वे टाइम पे पहुंच सकते हैं. नाउ इट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन डायरेक्ट स्पीच. They said if they tried, they could reach on time. ठीक, उन्हें कहा कि उन्होंने ट्राई किया तो वो टाइम पे पहुंच सकते हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? ओनली टेंस चेंज कर दिया रिपोर्टेड स्पीच का. नाउ आप ये सेड की जगह पे कोई अनदर वर्ड कोई पुट कर सकते हैं, लाइक एड, रिक्वेस्ट, अश्योर एंड मेंशन. He mentioned that if they tried, they could reach on time. And you can also eliminate mention and put add. He added that if they tried, they could reach on time. That is your choice, whatever you want to use in reported verb. Now here we are taking our example. Direct speech. You said you will be paid handsome salary or be stipend from there. You said you will be paid handsome stipend from there. You said you will be paid handsome stipend from there. That is your direct speech. You have to construct its indirect speech. Now how to frame indirect speech? That sentence. You assured that you would be paid handsome stipend from there. You assured that you would be paid handsome stipend from there. Now that is its indirect form. One more thing, you have to put said in place of assured. Even you can also put added, mention, protected. Now I tell its Hindi meaning. You said you will be paid handsome stipend from there. Its Hindi meaning will be
आपको वहां से, आपने कहा कि आपको वहां से अच्छा स्टाइपेंड पे किया जाएगा, आपने कहा कि आपको वहां से अच्छा स्टाइपेंड पे किया जाएगा ना। आप इसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, आपने कहा कि आपको अच्छा स्टाइपेंड वहां से पे किया जाएगा, ये इसका इनडायरेक्ट में भी यही बनेगा, क्योंकि आपका ये जो रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच बोथ आर बिगिनिंग फ्रॉम यू, सो आई डू नॉट वांट टू चेंज प्रोनाउन हियर। आपका सेंटेंस यही बनेगा इनडायरेक्ट के फॉर्म में। टेंस यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सिर्फ टेंस को चेंज किया, यू लुक आई हैव ऑलरेडी चेंज टेंस एंड वर्ड विल बी सेम। इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स, आपका कोई रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना। जैसा आप जानते थे हियर का देयर होता है, हियर का देयर होता है, बट यहाँ पे देयर का हियर होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग से सेंटेंस को आपको चेंज करना है। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। He said you stole my pen last night. He said you stole my pen last night. Now that is your direct speech sentence. It has to be framed in direct form. अब आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे फ्रेमिंग करेंगे? He accused stealing his pen last night. He said you stole my pen last night. ये आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है। इट्स हिंदी मीनिंग विल बी, आपने कहा है, उसने कहा कि आपने कल रात मेरा पेन चुराया। उसने कहा आपने कल रात मेरा पेन चुराया। अब मैंने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। फर्स्ट टाइप ही अक्यूज्ड स्टीलिंग हिज पेन लास्ट नाइट। ही अक्यूज्ड स्टीलिंग हिज पेन लास्ट नाइट। इट्स हिंदी मीनिंग विल बी, उसने आरोप लगाया कि उसने उसके पेन चोरी होने का आरोप लगाया। आप देख रहे होंगे इसमें ना मैंने डेट का यूज किया है और ना ही फ्रेट का यूज किया है। इसमें कुल मिला के कंडीशन ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को चेंज करना है, वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सिमिलरली फर्स्ट टाइप ये होगा, इवन ही टोल्ड दैट यू हैड स्टोलन हिज पेन लास्ट नाइट। He told that you had stolen his pen last night. उसने कहा कि कल रात आपने मेरा पेन चुराया। उसने कहा कि कल रात आपने मेरा पेन चुराया। आप ये दोनों सेंटेंस में से किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। ये सेंटेंस देख रहे होंगे, ये जो सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है ये अकॉर्डिंग टू सिमिलर टू अबव सेंटेंस, ऊपर वाले सेंटेंस के सिमिलर है, बट ये मेरी चॉइस है, मैं सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। It does not impact on sentence, meaning will be always same. He said to me, I will
tell you truth of that tell. He said to me, I will tell you truth of that tell. That is your डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस. ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इन डायरेक्ट स्पीच. इसकी हिंदी मीनिंग होगी, उसने मुझे कहा कि मैं आपको इस कहानी का सच बताऊंगा. उसने मुझे कहा कि मैं आपको इस कहानी का सच बताऊंगा. अब इसको इनडायरेक्ट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसने मुझे कहा कि वह मुझे इस कहानी का सच बताएगा. उसने मुझे कहा कि वह मुझे इस कहानी का सच बताएगा. हम इसको हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी के अकॉर्डिंग करना है. यू हैव टू कंडक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग योर माइंड. नाउ हाउ टू कंडक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? He assured that he would tell me truth of that tell. He assured that he would tell me truth of that tale. He assured that he would tell me truth of that tale. That is its indirect speech. ये इसका indirect speech के फॉर्म में कन्वर्शन हो गया. ये आपका रिपोर्टेड वर्ब था. रिपोर्टेड वर्ब में मैंने स्ट्रेट टू के प्लेस पे अश्योर को पुट किया. इवन मैं टोल्ड को भी पुट कर सकता हूँ. ये जो रिपोर्टेड स्पीच में स्ट्रेट टू है, इसकी जगह पे मैंने अश्योर को पुट किया. यहाँ पे टोल्ड को भी पुट कर सकता हूँ. आई कैन आल्सो टेक अनदर वर्ब. एग्रीड टोल्ड, कुछ भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. आप देख रहे होंगे मैंने ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस था, इसका मैंने ओनली टेंस चेंज कर दिया और प्रोनाउन चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. दैट्स ऑल. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. I said to him, I will treat you fairly. I said to him, I will treat you fairly. I said to him, I will treat you fairly. Its Hindi meaning will be, मैंने उनसे कहा मैं आपको फेयरली ट्रीट करूंगा. मैंने उनसे कहा मैं आपको फेयरली ट्रीट करूंगा. ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. डायरेक्ट स्पीच. नाउ यू हैव टू फ्रेम इट्स इनडायरेक्ट स्पीच. अब आपको इसके इनडायरेक्ट स्पीच में फ्रेमिंग करनी है. हाउ टू कंडक्ट सेंटेंस. Indirect speech. I told him that I would treat him fairly. I told him that I would treat him fairly. That is his indirect form. देखा हुआ ये जो आपका RS था रिपोर्टेड स्पीच जो था RS, इसका मैंने टेंस चेंज किया और प्रोनाउन चेंज किए. Now here we are taking interrogative sentence.
Interrogative sentence. Here question is rising up, how to construct indirect speech if sentence is given interrogative form. That means हमें इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाना है जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव के फॉर्म में हो. As we know that there are two kind of interrogative. One interrogative that start with HV family. HV family means helping verb family, and other is WH family of the WH words. As we know that there are two kinds of interrogative. One is helping verb interrogative and other is WH family interrogative. Now, first here we are looking HV family interrogative. How to construct indirect speech if your reported speech given in helping verb family. यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब फैमिली से स्टार्ट होता है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे फ्रेम करना है. फर्स्ट वन मोर थिंग नोट, जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस is converted in assertive sentence to construct indirect speech. Whether it belongs to helping verb or interrogative oblique WH what's interrogative. This point has to be remembered. Generally, interrogative converted in assertive sentence to construct indirect speech. Generally, interrogative sentence is converted in assertive sentence to construct indirect speech. इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव जो होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए. यदि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव हो या फिर WH फैमिली का इंट्रोगेटिव हो, आपको सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, आपका ये जो से है, शे का कन्वर्शन होता है वंडर, इंक्वायर, want to know, and ask. ये से का कन्वर्शन होता है वंडर, इंक्वायर, want to know and ask. Generally we put ask in reported verb. Now fed is
चेंज इनटू आस्क, से को आस्क में चेंज करते हैं। एंड इफ एंड वेदर are used to link sentence if sentence is being started with helping verb. If and whether are used to link sentence if sentence being started with helping verb. If and whether are used to link sentence if sentence is being started with helping verb. And if and whether का यूज करते हैं हम सेंटेंस को लिंक करने के लिए जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स इफ और वेदर यहाँ पे कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं। कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं यदि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि वहां पे हम डेट का यूज कर रहे थे सेंटेंस को लिंक करने के लिए। बट जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के फॉर्म में हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो आपको इफ और वेदर का यूज करना है सेंटेंस को लिंक करने के लिए। और कौन सा सेंटेंस लिंक होगा आपका? ये रिपोर्टेड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। He said that is it so? Is it so? He said is it so? उसने कहा क्या ऐसा है? Now that is its हिंदी मीनिंग। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एसवी फैमिली का। मीन्स हेल्पिंग वर्ब का आपका इंट्रोगेटिव ही है। हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव है। अब आपको यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इट्स इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच आरएस एंड आरवी। इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट आरवी एंड आरएस। आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच एंड आरवी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है, इसको रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस से लिंक करने के लिए हम कंजंक्शन इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। इस सेंटेंस से लिंक करने के लिए हम इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। कैसे इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट के फॉर्म में? ये आपका डायरेक्ट का है। नाउ इट हैज टू बी कन्वर्ट इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में आप इसे कैसे करेंगे? he said if it was so। इधर he said even he asked if only whether it was so। फर्स्ट कन्वर्शन हमने देखा he said if it was so। he said if it was so, ये इनडायरेक्ट में हो गया कन्वर्ट। अब सेकंड क्या है? he asked if it was so oblique he asked whether it was so। आप यहाँ पे if भी पुट कर सकते हैं और whether भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। he asked if and whether it was so means
यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने आस्क पुट किया फेड की जगह पे, और यहाँ पे मैं वेदर को पुट कर सकता हूँ इफ की जगह पे. इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस, मीनिंग विल बी ऑलवेज सेम. मीनिंग विल बी ऑलवेज सेम. दैट इज योर चॉइस, वट एवर यू वांट टू डू. On interrogative sentence, firstly here we are taking as if family examples. As if family example, that means helping her family. Now he said, is he laughing on claim C position. Claim C position. He said, is he laughing on claim C position? He said, is he laughing on claim C position? Its Hindi meaning will be, उसने कहा क्या वो claim C position पे हंस रहा है? क्या वो claim C position पे हंस रहा है? Claim C means strange, oblique odd means अजीब. Now ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डी आर डायरेक्ट स्पीच का. अब आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे आप लोग? ही आस्क्ड if he was laughing on claim C position. He asked if he was laughing on claim C position. He asked if he was laughing on claim C position. Now ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. आपने देख रहे होंगे मैंने सेंटेंस को यूज करने के लिए इफ का यूज किया, और ये सेंटेंस जो था आपका रिपोर्टेड स्पीच का, इसका टेंस चेंज हुआ. अच्छा सॉरी, क्लेम सी, क्लेम यहाँ क्लेम सी की स्पेलिंग नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गई. क्लेम सी, क्लेम सी, सी. Now we look another example. आप इस सेंटेंस को, अगर आप इसको पुट नहीं करना चाहते तो आप इसकी प्लेस पे वेदर को भी पुट कर सकते हैं. मीनिंग विल बी ऑलवेज सेम एंड इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस. सी सेड, आर यू sending him message. She said, are you sending him message? यह आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. इट्स हिंदी मीनिंग विल बी, उसने कहा क्या आप उन्हें मैसेज भेज रहे हैं? क्या आप उन्हें मैसेज भेज रहे हैं? अब इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट. हाउ टू कन्वर्ट इट इनडायरेक्ट स्पीच? She asked if he was sending him a message.
She asked if she was sending him message. She asked if she was sending him message. Its Hindi meaning will be, उसने कहा कि वो उसे मैसेज भेज रहा है, उसने कहा कि वो उसे मैसेज भेज रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ टेंस चेंज किया और प्रोनाउन को चेंज किया। आपने यू किया तो ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये प्रोनाउन इनडायरेक्ट में ही के फॉर्म में बन रहा था, इसलिए मैंने यू के यहाँ पे ही पुट किया और इसका टेंस चेंज हो गया, इसका टेंस चेंज हुआ। और ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था एजी फैमिली का, ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, ये सेंटेंस अफर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, अफर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट आई मेड रिटन बिफोर, जो मैंने पहले लिखवाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अफर्टिव सेंटेंस है। नाउ वी आर लुकिंग एग्जांपल ऑन WH फैमिली एंड बिफोर इट आप यहाँ पे वेदर का यूज भी कर सकते हैं। वेदर, शी आस्क्ड वेदर ही वाज सेंडिंग हिम मैसेज, शी आस्क्ड वेदर ही वाज सेंडिंग हिम मैसेज। नाउ हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ऑन WH फैमिली डायरेक्ट स्पीच में सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ही सेड व्हाट इज योर नेम। He said what is your name। इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट के फॉर्म में बनाना है। यू हैव टू कंट्रस्ट इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। हाउ विल यू फ्रेम इट? आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी, उसने कहा आपका नाम क्या है, उसने कहा आपका नाम क्या है। नाउ इनडायरेक्ट में कैसा, ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। He asked what my name was। उसने कहा कि मेरा नाम क्या था, ये इसकी हिंदी मीनिंग होगी। आप देख रहे होंगे WH फैमिली के इंट्रोगेटिव में मैंने कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं किया सेंटेंस को लिंक करने के लिए। यहाँ पे ना मैंने इफ का यूज किया है, ना ही वेदर का यूज किया है, ना ही डेट का यूज किया है। जब आपका सेंटेंस WH फैमिली से हो तो नो कंजक्शन इज यूज टू लिंक सेंटेंस, कोई कंजक्शन नहीं यूज किया जाता सेंटेंस को लिंक करने के लिए, बस प्रोनाउन चेंज होते हैं और आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के फॉर्म में वो अफर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी टेक मोर एग्जांपल। नाउ वी टुक अनदर एग्जांपल। He said what is your profession? He said what is your profession? That is your डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ये आपका डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस का एग्जांपल है। उसने कहा, इसकी हिंदी मीनिंग होगी, उसने कहा आपका क्या प्रोफेशन है, उसने कहा आपका क्या प्रोफेशन है। नाउ यू हैव टू फ्रेम इट्स इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नाउ इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? ही आस्क्ड what my profession was, what my profession was। He asked what my profession was। That is your indirect speech sentence। आप देख रहे होंगे ये जो आपका RV था रिपोर्टेड वर्ब और ये था RS रिपोर्टेड स्पीच। जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से हो या फिर डायरेक्ट स्पीच WH फैमिली से
बिलोंग करता है। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस को लिंक करने के लिए कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। नो कंजक्शन, नो कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन यूज टू सेंटेंस। ये सेंटेंस को लिंक करने के लिए कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा। जैसे आप वहां पर डेट यूज करते थे एंड ए फॉर वेदर यूज करते थे, ये कंजक्शन यूज नहीं होंगे। और ये जो सेंटेंस है आपका, ये इंट्रोगेटिव से आपका अफर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव से अफर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव से अफर्टिव में चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा, यहाँ पे आपके प्रोनाउन चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, आपके प्रोनाउन। दैट्स ऑल। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच, he asked या he said to me, where do you live? He said to me, where do you live? He said to me, where do you live? You have to frame its indirect speech. इसका indirect में कैसे कन्वर्शन होगा? He asked where I lived. Where I lived. He asked where I lived. मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग बताता हूँ। उसने मुझे कहा आप कहाँ रहते हो। उसने मुझे कहा आप कहाँ रहते हो। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में था। अब इसका इनडायरेक्ट में हुआ he asked where I live. उसने कहा मैं कहाँ रहता हूँ। उसने कहा मैं कहाँ रहता हूँ। आपने देखा said to का मैंने ask में कन्वर्ट कर दिया और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे डू का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है तो हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू ऑब्लिक डस को और रिमूव कर देते हैं। और यदि पास्ट में डिड हो तो ये डिड भी रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नाउ we look at another example. You said that why are you crying? You said why are you crying? You said why are you crying? ये आपका डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। इट्स हिंदी मीनिंग विल बी आपने कहा आप क्यों चिल्ला रहे हैं। आपने कहा आप क्यों चिल्ला रहे हैं। नाउ इसका आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। You asked sorry यहाँ पे I have to put why are you crying, sorry why are you crying, why I was crying, why I was crying। You asked why I was crying। उसने कहा मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। उसने कहा मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, जो कि आपका इनडायरेक्ट के फॉर्म में इसकी हिंदी ऐसे बनेगी और सेंटेंस में कन्वर्शन इसका अकॉर्डिंग होगा। दैट्स ऑल।